Hello my dear students, કેમ છો? I'm fine? Okay, hope so you're doing well at home, lockdown, enjoying. I'm also enjoying with this. We have completed 2 chapters. Okay, first chapter, second chapter. नाम तो पता ही होगा आपको, याद रखना होगा, है ना? First one was crop production and management, second one was microorganism friend and foe. Third one chapter, synthetic fibers and plastic. Welcome on the session of fourth man that I forgot to say. Sorry. Synthetic fibers and plastic. Synthetic मतलब synthesis करना, बनाना. और क्या बनाना? Fiber and plastic. प्लास्टिक तो हमारे घर पे बहुत होगा, as the form of wrappers, as the form of container. We are using too much plastic, right? And plastic is our last topic. But first one we are going to see fibers. Fiber का मतलब क्या होता है? Small thread. Small fine threads. Fiber to fabric 7th standard 3rd chapter. आपने पढ़ा होगा 7th standard because now you are in 8th standard. So 7th standard you must have remember that fiber to fabric. Fiber means it can be natural. Over there you had learned natural fiber. So that only I want to say here. I have written in the form of this chart. This is the part of what is introduction regarding this chapter, and after that what is synthetic fiber. ठीक है? तो fiber is a fine thread. Fine मतलब एकदम छोटा छोटा. Small. So fine thread. Okay. There are two type of fiber: natural fiber and synthetic fiber. Here we are going to learn synthetic fiber, right? Synthetic fiber, natural and artificial source. Natural source we have learned in 7th standard chapter number 3, fiber to fabric, plant and animal. Natural fiber के source दो होते हैं, plant and animal. Plant example if I can give, that is cotton, and animal wool, sheep, yak, goat, silk. This all वो animal. तो ये जो वूल था वो नेचुरल मतलब कि सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता था. वूल किससे मिलता था? वूल यील्डिंग एनिमल से. मीन्स वूल एंड सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. वूल मिलेगा हमें शीप से, गॉट, याक, एंड सिल्क वी कैन गेट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल. नेचुरल सोर्स में प्लांट है. वी कैन गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जूट बैग फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जूट प्लांट. सो दिस इज नेचुरल सोर्स. बट ये तो आपका रिवीजन था, ये तो 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया. अभी आप क्या करोगे? वी विल लर्न सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल वी हैव लर्न. सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स. और सिंथेटिक फाइबर, व्हाट इज द टर्म? व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक मीन्स मेन मेड. जो हम लोग बनाते हैं ना उसको सिंथेटिक बोलते हैं. मेन मतलब कि इंसान बनाता है, वो नेचुरली नहीं आता. सिल्क आपको नेचुरल चाहिए तो सिल्क वॉर्म मतलब कि जो सिल्क वॉर्म होगा दे ओनली कैन गिव सिल्क. But artificial silk, if you want that can be done in the machinery by the taking help of man, labor. तो मशीन को बनाने वाला कौन है? हम ही तो है ना, right? So synthetic fibers which made up by human being. Already I have written here made up by human being मतलब इंसान से बनता है, is known as synthetic fiber. Synthetic fiber which made up ऐसा fiber, the type of fiber. Here you can write the type of fiber which is made up by the human being is known as synthetic fiber. Okay. और synthetic fiber another term man made. Man made मतलब man ने बनाया हुआ. Common sense, man made fiber. Okay. But ये fiber का structure कैसा होगा? So that made up from the joint small units. मतलब कि suppose मेरे पास कोई माला है, ओके, गले में पहनने के लिए. मेरे पास कोई बीड्स का कोई नेकलेस है, ज्वेलरी है. तो उसके अंदर स्मॉल बीड्स हो गए, मतलब छोटे मोती हो गए. वो मोती सब साथ में मैं अगर थ्रेड में डालूंगी या फिर चेन में डालूंगी तो वो मेरा नेकलेस बन गया. अब वो नेकलेस को ही मैं तोड़ के छोटे वो बीड्स है, वो बीड्स को मैं अलग कर लूंगी तो वो सिंगल यूनिट हुआ, राइट? वैसे ही मेड अप फ्रॉम द जॉइंट स्मॉल यूनिट मतलब स्मॉल यूनिट है, उसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. आप यहाँ पे देखोगे तो कपड़े के अंदर आपको छोटे थ्रेड दिखेंगे. ओके, सो दैट थ्रेड्स ज्वाइन हो गए ना, ज्वाइन टुगेदर, एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट क्लोथ्स. बट स्मॉल यूनिट का भी ज्वाइन होगा और वो बनेंगे पॉलीमर. सो व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? डेफिनेशन वी हैव सीन. ओके, इन द डेफिनेशन अगेन फॉर द मोर introduction or more detail, I have written here many such small unit combine to form large single unit. मैंने वही नेकलेस वाला एग्जांपल की, स्मॉल यूनिट कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा? लार्ज यूनिट बनेगा. एक बीड्स था, वो बीड ही था, बट वो सारे के सारे बीड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? एक लार्ज यूनिट बन गया.
So many such small units combine to form large single unit is called polymer. पॉली का मतलब क्या? यहाँ पे कोई मैं इंसान का या फिर कोई लड़की का नाम नहीं बोल रही हूँ. पॉली मीन्स मोर देन टू. दो से ज्यादा हो गए तो पॉली बोलेंगे, और एक होगा तो उसको बोलेंगे मोनो. क्या बोलेंगे? मोनोमर. Monomer you will learn in 10th standard, 11th standard, 12th standard. Okay, so keep it for later. Monomer means single, but single unit अगर combine हो गया और large unit बनेगा. अभी ये कैप है, ये एक single unit है, right? अभी ऐसे सारी कैप को मैं यहाँ पे होल्ड करके इसको एक थ्रेड में डाल के इसको ऐसा नेकलेस जैसा बना दूँ तो वो एक लार्ज यूनिट हो गया. दिस इज सिंगल यूनिट, स्मॉल. बट ऐसा बहुत सारा बनेगा तो लार्ज यूनिट. सो मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर. Okay, so what is artificial source? Natural source we have already learnt in 7th class. Artificial source means the fiber which is made up from the man or human being. It is known as synthetic fiber or man-made fiber made up from the joint small units. Join हो गए. So that is only many such small unit combined to form large single unit is called polymer. This all about what is synthetic fiber. Okay, what is source, नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स. आज के लिए बस इतना ही, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल सी नाइलॉन, रेयन. अभी नाइलॉन के कपड़े, रेयन के कपड़े वो हमने देखे होंगे, बट नाइलॉन, रेयन वो कैसे बनता है, व्हाट मटेरियल्स वी आर यूजिंग. एंड नाइलॉन, रेयन दे ऑल आर आर्टिफिशियल फाइबर. वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, मतलब मेन मेड है, इंसान, ह्यूमन बीइंग ने बना है, राइट. सो नाइलॉन, रेयन, आफ्टर दैट एक्रिलिक, टेरिलीन. उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाई वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल, वाई, बिकॉज इट इज चीपर. अगर हम डेली अभी ओरिजिनल कपड़े पहने, मीन्स नेचुरल पहनेंगे कपड़े लाइक सिल्क, अफोर्ड कर पाएंगे? नो, इट्स नॉट अफोर्डेबल. और हमारा रफ एंड टफ यूज होता है. और जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं. एंड आवर वर्क इज नॉट लाइक दैट, इट कैन हार्डन or it can expose in the air or too much terrific condition, right? So it is cheaper in the price first of all, कि हमें easily available है, और price में भी comparison to natural it's cheaper, कम price में मिलता है. So we can afford, all can afford, so all can purchase clothes. That's why we are wearing these artificial fibers. And nylon, rayon है, टेरिलीन है, एक्रिलिक है. आफ्टर दैट आई कैन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी. आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक वी विल लर्न प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वी विल लर्न. आफ्टर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वी विल लर्न प्लास्टिक एंड अवर एनवायरमेंट. मतलब प्लास्टिक तो हम यूज करते हैं, पर हमें थोड़ा कंट्रोल में यूज करना चाहिए. देन एंड देन ओनली वी कैन सेव अवर एनवायरमेंट बाई कीपिंग फार पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, राइट, वाटर पोल्यूशन होगा. वाई? बिकॉज वी आर थ्रोइंग प्लास्टिक एनीवेयर. अगर आप बस में बैठे हो, प्लास्टिक के अंदर चिप्स हमने परचेज की है ना. आपकी कौन सी फेवरेट है? मेरी तो फेवरेट क्रीम एंड अनियन है. तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्रीम एंड अनियन का. क्या हम परचेज करते हैं बस में बैठे हुए, वी आर परचेसिंग क्रीम एंड अनियन. ओके, इट्स रैप्ड इन द प्लास्टिक बैग. एंड आफ्टर ईटिंग, जनरली आई एम नॉट थ्रोइंग, बट मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विंडो ओपन करेंगे और विंडो से बाहर थ्रो कर देंगे. अभी वो प्लास्टिक कहीं पे भी जाएगा, राइट. अभी वो प्लास्टिक को कोई एनिमल है वो एज अ फूड समझ के खा लेंगे, तो उनके पेट में क्या होगा? डिजीज, और वो मर भी सकते हैं. अगर हमने पानी में थ्रो किया तो वहाँ पे फिश उसको खाना समझ के खा लेंगे. सो दिस एवरीथिंग इज जस्ट कॉजिंग पोल्यूशन ओनली ड्यू टू अवर रेकलेसनेस, मीन्स अवर केयरलेसनेस. वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. सो दैट इन द पोर्शन ऑफ प्लास्टिक वी विल लर्न, and fibers we will learn from tomorrow onwards. This all about synthetic fiber, polymer and introduction. Hope so you understood guys, and stay tuned with me. अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लाइक करना, so I can understand कि you are watching my videos, nothing else, no any purpose. Thank you, stay tuned with me.